This is rotational motion part 2, and part 1 was abruptly ended due to some technical reasons. So I will start with the question number 4 in this part, as I have already discussed the first 3 questions in the previous part, right? And so I will discuss the question number 4, and I already explained the importance of this chapter very clearly in that previous video, right? So in case you don't know about me, I'm engineer Aprajita, GATE qualified, and guiding students for their JEE preparation from almost a decade, right? And I'm the only teacher who can guide you in the physics, chemistry, and mathematics. And I can tell you the interlinked concepts of all the 3 subjects, right? So let's start with the question. And this question is given the 2 circular discs of the radius, each 10 centimeter. So you should not ignore any data what is provided in the question. So read it very, very carefully, right? The radius is 10 centimeter and the rod is also there. Rod ka length आपको given है, that is 30 centimeter. And the important thing you can notice here is that the mass, right? So what the mass is given, this is 600 gram, right? The 600 gram mass of the rod and mass of the disc is also 600 gram. So for the simplicity of the calculation, you can, in the starting, you can take mass as m and the length of the rod as L, and after that finally you can substitute the values, right? So whenever I'm just calculating the values, then I will start my calculation about the center of mass, and after that we can shift it by the parallel axis theorem to any of the axis which is required, right? So what is given here, that apply torque between the discs. So you have given torque, right? And the angular acceleration we need to calculate. The angular acceleration of the disk they are asking. So you must know the relation between the angular acceleration, that is alpha, and the torque. So what is the relation? Torque is equal to I alpha, right? So this is the relation. The torque is given, and alpha we need to calculate. So the only important thing is about the moment of inertia. So if I can calculate the moment of inertia, then the question is simple. Torque को I से divide कर दोगे, answer आ जाएगा alpha, right? So what I'm just going to calculate is the moment of inertia of the whole system, right? So first I will just find the moment of inertia about the center of mass, right? So I will draw center of mass is the midpoint. Definitely this is 30 centimeter. So 15 centimeter पे यहाँ पे क्या होगा आपका? This is 15 पे आपका moment center of mass होगा. This is 15. So definitely this will become 5. So if I'm taking the length of the rod as L, तो 5 को यू कैन राइट, मैं कैलकुलेशन के लिए ऐसा कर रही हूँ, यहाँ पे 5 हो गया, तो 30 का 5 अगर लिखोगे तो इसको यू कैन राइट L/6, राइट? तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर मैं टोटल इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना चाहूँ, देन व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल सिस्टम। तो माइंडेड यहाँ पे जो डिस्क दिया है ना, तो डिस्क का अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर पे निकालते हो, देन इट इज हाफ mr²। लेकिन आपको यहाँ पे डायमीटर के अबाउट लगाना है, क्योंकि जस्ट इमेजिन, विजुअलाइज दिस सिस्टम, यहाँ पे जो होगा डायमीटर के अबाउट होगा, उसके बाद उसको पैरेलल एक्सिस से शिफ्ट करना होगा, करेक्ट? तो जब इसको डायमीटर के अबाउट निकालोगे तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से इट विल बिकम 1/4 ऑफ mr²। तो मैं डायरेक्टली अगर इसका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूं, बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज स्केलर क्वांटिटी, यू कैन डायरेक्टली ऐड इट। तो फुल रॉड का हो जाएगा, इट विल बिकम ml²। तो मास में 600 दोनों का m है, चाहे डिस्क का हो या रॉड का हो, दोनों का 600, दोनों को m ले लेती हूँ, एंड ml²/12। ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट रॉड का हो गया। इसको L/6 से शिफ्ट करोगे, क्योंकि तुम्हें इस वाले पे निकालना है, तो L/6 से शिफ्ट कर दो इसको, तो ml/6², राइट? तो ये पूरा जो है वो हमारा रॉड के लिए हुआ है। अभी मुझे डिस्क के लिए लिखना है, तो डिस्क के लिए अगर हम लिखते हैं, इसको 2 टाइम्स कर देते हैं, क्योंकि 2 डिस्क है। तो 2 डिस्क का अगर मैं लिखूँ, एक डिस्क का डायमीटर के अबाउट हो जाएगा 1/4 mr², तो 1/4 mr², तो 2 डिस्क का हो जाएगा 2 टाइम्स 1/4 mr²। अब ये वाली जो डिस्क है वो 10 सेंटीमीटर पे पैरेलल एक्सिस पे शिफ्टेड है, एंड दिस डिस्क इज शिफ्टेड बाय 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स डायमीटर। देन इसमें mr² इसके लिए भी ऐड करना पड़ेगा और इसके लिए भी, राइट? तो इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम से mr², m इंटू 10² प्लस m इंटू दिस इज योर 20, तो 20 स्क्वायर,
तो इसको सिंपली कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास ml स्क्वायर बाई 12 एंड दिस इज ml स्क्वायर बाई 36। तो 36 एलसीएम आएगा एंड दिस विल बिकम 3 ml स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर विल बिकम 4 ml स्क्वायर अपॉन 36। दिस इज 4 ml स्क्वायर अपॉन 36, दैट मीन्स ml स्क्वायर अपॉन 9। तो मैं इसको यहाँ पे क्या लिख दे रही हूँ, दिस इज ml स्क्वायर अपॉन 9 प्लस दिस इज हाफ ऑफ mr स्क्वायर, half of mr square plus this is 100 m and this is 400 m. So 100 plus 400 is 500 m. So 500 m, right? तो L की वैल्यू मुझे गिवन है, लेंथ ऑफ द रॉड इज 30 मीटर 30 centimeters. So okay, everything is given in the CGS unit and so I can just put it in the CGS also. तो CGS में अगर इसको पुट करोगे लेंथ को 30 सेंटीमीटर, तो 30 स्क्वायर विल बिकम 900. तो 900 को 9 से डिवाइड करेंगे, इट विल बिकम 100. सो इट इज 100 m. और यहाँ से अगर r स्क्वायर, r इज 10 सेंटीमीटर, 10 स्क्वायर इज 100, तो 100 by 2 is 50. So this is 50 m, this is 500 m, this is 100 m. तो 50 plus 500, 550 plus 100 is 650 m. तो 650 इंटू m, ये आपका आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था एंगुलर एक्सीलरेशन, दैट मीन्स अल्फा चाहिए था. तो यू कैन कैलकुलेट अल्फा. तो अल्फा को बस टॉर्क को आई से डिवाइड कर दो. तो टॉर्क हमें गिवन ही था क्वेश्चन में, दिस इज 43 इंटू 10 रेज टू द पावर 5. माइंड इट इज ऑलरेडी गिवन इन द सीजीएस 9 सेंटीमीटर. तो हमें कुछ भी सीजीएस कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने सारा सीजीएस में लेके सॉल्व कर दिया. दिस इज ऑल्सो द इंपॉर्टेंट थिंग. अगर आप कन्वर्ट करने लग जाओगे तो यहीं पर टाइम वेस्ट हो जाएगा. अगर इसको एल की वैल्यू पुट करने लग जाओगे तो भी टाइम वेस्ट होगा. You must save your time so that you can use that time in your mathematics question, because mathematics question are mostly lengthy, right? If you save your time in the physics problems, you will use it there. Then 600 m, यानी कि इसको 600 m से डिवाइड कर दो. तो 650 into mass is given, that is 600. So if I just use 1 2 3, तो 3 0 यहाँ कैंसिल करूंगी तो यहाँ पे बचेगा आपका स्क्वायर. सो इट विल कम 4300 अपॉन 65 into 6. So 65 into 6 is what, मैं फाइनली आंसर यहाँ लिख देती हूँ. This is alpha is equal to 4300 upon 6 is 36. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इज 39 430 अपॉन 39. तो 39 को अप्रॉक्सीमेटली 40 सोच सकते हैं. तो 40 अपॉन 430, इट इज अप्रॉक्सीमेटली 11. सो योर आंसर इज 11. तो देखो यहाँ पे फॉर्मूले पे मैंने सिर्फ 2 फॉर्मूले यूज किए. फॉर्मूले में एक ही फॉर्मूला यूज किया, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा. एंड सेकंड फॉर्मूला तो आपका सिर्फ क्या था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम कैसे निकालना है, यही आपको प्रैक्टिस करना होता है, राइट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. In this question, uniform solid cylinder of length L and radius R. So read the question very very carefully, and you must open your notebook and don't just try to listen the video just passively. You must solve the question, pause the video and start solving by yourself, and you can just match the solution or discussion from this to your solution, right? So this is what, uniform cylinder, length L, radius R. करेक्ट. मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका गिवन है, दैट इज I1. सो एक स्मॉल कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर है, उसमें से कार्व्ड आउट किया, इस कार्व जो किया है दैट इज L/2 लेंथ एंड द रेडियस इज R/3. यानी कि एक छोटा सिलेंडर है, कॉन्सेंट्रिक है, तो मैं यहाँ कॉन्सेंट्रिक छोटा सिलेंडर बनाती हूँ. तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट इज I2. तो व्हाट आई नीड टू कैलकुलेट, रेशियो दोनों का I1 अपॉन I2 निकालना है, करेक्ट. सो हमें रिमेनिंग वगैरह का नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है, दोनों का इंडिविजुअली I1 I2 निकाल के बस डिवाइड करना है, राइट. तो तुम्हें सिलेंडर का पता होता है कि अगर सिलेंडर का उसकी मेन एक्सिस इसके अबाउट अगर हम देखें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट एक्सिस, राइट. तो इसके अबाउट अगर हम देखते हैं तो इट्स जस्ट लाइक मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क, एंड दैट इज डेफिनेटली हाफ mr स्क्वायर. तो I1 विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ mr स्क्वायर. तो रेडियस अगर कैपिटल आर लिए तो कैपिटल आर लिख लो, स्मॉल आर कह रहा है स्मॉल लिख लो, डजंट मैटर, राइट. सो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया. लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि व्हाट मास यू आर कार्व्ड आउट, राइट. तो तुम्हें इसमें मास की रिक्वायरमेंट लगेगी, क्योंकि हाफ mr स्क्वायर जो कार्व्ड आउट है उसका तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए उसकी मास की जरूरत पड़ेगी, राइट. सो लेट द मास ऑफ दैट इज m डैश. सो मास क्या होता है ना, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. तो अगर मैं फुल सिलेंडर का मास देखूं तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. सो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज पाई r स्क्वायर h.
तो पाई आर स्क्वायर एंड हाइट इज डेफिनेटली द लेंथ, तो लेंथ को कैपिटल लेटर लिख ले लो, पाई आर स्क्वायर एच हो गया वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ये तो मेरे पास हो गया फुल सिलेंडर के लिए, राइट। तो जो इसमें सिलेंडर तुमने रिमूव किया है उस सिलेंडर का मास कितना होगा, दैट विल बी वॉल्यूम इनटू डेंसिटी अगेन। तो पाई आर, आर बोल रहा है आर बाई 3 कर दो, पाई आर स्क्वायर, लेंथ को कह रहा है एल बाई 2 कर दो, पाई आर स्क्वायर एच हो गया, एंड डेंसिटी यूनिफॉर्म रहती है तो डेंसिटी वही रहेगी। तो ये हो गया मास, राइट। अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे, दिस इज पाई आर स्क्वायर एल रो, दैट इज एम, एंड 3 स्क्वायर इज 9, 9 to 18, so it will become m by 18, right? So the mass of the removed cylinder is m by 18, correct? So if I'm writing the moment of inertia for the second cylinder, it will become half of m dash square r by 3 square. So what you need to do, you just need to divide these two equations, first and second. If you will divide it, 1 by 2 will get cancelled out, r square भी cancel हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका, मैं डायरेक्टली लिखूंगी तो I1 अपॉन I2 m by m dash you know that is m by 18, एंड यहाँ बचेगा r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 9 न्यूमरेटर में आ जाएगा, सो इट विल बिकम r स्क्वायर कैंसिल होने के बाद 18 इंटू 9, करेक्ट। तो ये 3 का स्क्वायर 9, 18 इंटू 9 विल बिकम 162, so 162 is your answer. So you can see that question was not difficult at all. So this question was simple, and simple question आपको नहीं छोड़ना है, because ये competition है भाई, है ना, competition है, competition में आपको ये सोच के नहीं छोड़ना कि रोटेशनल मोशन एज अ टफ चैप्टर मैंने पढ़ा ही नहीं, रिवाइज नहीं किया, तो उसका जो आसान क्वेश्चन है जो सारा बच्चा कर रहा है, यू मस्ट बी एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, राइट। जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो किसी से नहीं बनेगा, उससे रैंक नहीं खराब होती, आसान क्वेश्चन से खराब होती है, आसान क्वेश्चन होना चाहिए। A thin rod of X of mass M is pivoted at this, तो ये pivoted डेफिनेट सी बात है, अगर pivoted होगा तभी वो रोटेट कर सकता है। ये दिस इज द ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट दैट अगर कोई भी चीज अगर आप फोर्स लगा रहे हो तो वो आगे ट्रांसलेशनल मोशन करती है, बट इफ इट इज पिवटेड देन वो रोटेट कर जाती है, राइट। तो रोटेशनल मोशन होता ही तभी है व्हेन देयर इज सम पिवट और सम फिक्स्ड पॉइंट, फल्क्रम इज देयर, राइट। तो एक यूनिफॉर्म रॉड है, मास m, लेंथ l, पिवट कर दिया l by 3 पे, एंड होगा क्या यहाँ पे, इफ इट इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द वर्टिकल पोजीशन, तो ये टेबल पे आ जाएगी, मतलब कि इट विल रोटेट लाइक दिस, राइट। तो ये ओमेगा से यहाँ रोटेट कर जाएगी, तो व्हाट यू नीड टू कैलकुलेट, रोटेट करेगी तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, दैट मींस यू नीड टू कैलकुलेट द ओमेगा, करेक्ट। तो ओमेगा कैसे निकालोगे, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दो। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम इज आई इंटू ओमेगा, राइट। तो ओमेगा ही हमें निकालना है, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अगर हम देखें तो यहाँ से एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओ, नहीं, इट्स बेटर अगर तुम यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, राइट। तो तुम्हें अगर ओमेगा ही निकालना है तो एंगुलर मोमेंटम मैं इसका नहीं निकाल सकती, तो पूरा तो हम एनर्जी कंजर्वेशन से बेटर पड़ेगा, क्योंकि अगर इसका तुम सेंटर ऑफ मास देखोगे, अगर मैं यहाँ से देखूँ इसका सेंटर ऑफ मास, ये पूरा जो मिड पॉइंट होता है ना वो उसका सेंटर ऑफ मास होता है, तो बेसिकली ये पूरा l by 2 होगा, और अगर l by 2 से अगर ये l by 3 यहाँ पे है, तो इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आ रहा है वो l by 2 माइनस l by 3, l by 2 माइनस l by 3 मीन्स l by 6, तो l by 6 का हाइट में चेंज आया, यानी कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी जो चेंज आएगा दैट इज mgh, अगर मैं लिखूं यहाँ पे तो mg l by 6, ये आएगा आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इसमें, क्योंकि और कोई मोशन, क्योंकि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी तो हो नहीं रही है, क्योंकि यहाँ से पिवट है और गिरेगी तो सीधे घूमेगी, करेक्ट। तो यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, रोटेशन होगा, तो दिस पोटेंशियल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज योर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो तुम्हें आई चाहिए होगा, तो आई को मैं हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिख देती हूँ नेक्स्ट स्टेप में, और मुझे ओमेगा कैलकुलेट करना है। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, हाउ टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम, राइट। तो अगर मुझे सेंटर ऑफ मास, ये है सेंटर ऑफ मास के अबाउट रॉड का ml स्क्वायर अपॉन 12 होता है, लेकिन तुम्हें चाहिए इस पॉइंट के अबाउट जहां से ये घूम रहा है, करेक्ट। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से उसको शिफ्ट कर दो, तो यहाँ से अगर मैं डायरेक्टली मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे लिख देती हूँ, तो इट विल बिकम, पहले तो रॉड का लिखूंगी तो इट इज ml स्क्वायर अपॉन 12 प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम से l by 6 शिफ्ट करोगे तो m l by 6 का स्क्वायर, राइट, और ओमेगा स्क्वायर। तो ये जो मैंने पूरा लिखा है, दिस इज योर कंप्लीट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम, राइट। इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो m तो कॉमन लेके गया,
तो यहाँ से 2 3 जा 6, ये भी गया, तो इट विल बिकम GL/3 इज इक्वल टू L स्क्वायर कॉमन ले लो, L स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा 1/12 प्लस 1/36, तो अगेन द सेम डेटा, तो 36 एलसीएम आएगा और 3 प्लस 1 यानी कि 4/36, 4/36 इज 1/9, तो 1/9 ओमेगा स्क्वायर, तो ये वाला एक L से चला जाएगा और यहाँ क्या होगा 3 3 जा 9, सो ओमेगा की वैल्यू आ रही है यहाँ से 3G/L का अंडर रूट, तो ओमेगा की वैल्यू आ रही है मेरे पास अंडर रूट ऑफ 3G/L रूट, तो ऑप्शन इज 3G/L, बी पार्ट 3G/L का रूट, राइट। सो अगेन आप देखो ना, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, फालतू का डरना है केवल केवल, तो आप सिर्फ डर रहे हो, कुछ नहीं हो रहा है। एक बार दो बार प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन, मैंने बोला था स्टार्टिंग में, एक पैटर्न होता है, ऐसा नहीं होता कि टीचर प्रेडिक्ट कर लेता है कि क्वेश्चन ऐसा आएगा। अरे भाई, टीचर इतने सालों से वो क्वेश्चंस को देख रहा है, उसको पता ही ऐसे क्वेश्चन आते, दैट्स इट, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगर इतने सालों के क्वेश्चंस तुमने देख लिए होते, तुम भी बता देते क्वेश्चन कैसा आ रहा है, राइट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज two masses 400 gram and 350 grams are suspended from the ends of the light string passing over a heavy pulley of the radius 2 centimeter. तो देखो, क्वेश्चन सॉल्व करने का एक अप्रोच होता है। अगर मैं यहाँ पे इसको कैलकुलेशन से ये सब लेके चलूँ ना, तो क्वेश्चन काफी लेंदी हो जाता है, और प्लस यहाँ पे देखो मासेस ग्राम में दिए हैं, आंसर एसआई यूनिट में पूछ रहा है, और यहाँ पे भी जो डेटा दिया है वहां से एक्सेलरेशन निकालना है, तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है। ये जो यहाँ पे ये बोल रहा है कि हेवियर मास इज ऑब्जर्व टू फॉल 81 सेंटीमीटर इन 9 सेकेंड व्हेन इट इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। तो एक तो इक्वेशन ऑफ मोशन से तुम S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर से एक्सेलरेशन तो निकाल ही सकते हो। फिर रोटेशनल इनर्शिया ऑफ द पुली, तो फर्स्ट आई एम जस्ट ड्राइंग द डायग्राम कि किस तरीके का बनेगा सिस्टम। तो ये आपका देखो, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन रोटेशनल में थोड़ा सा डिफरेंस ये आता है ना, कि यहाँ जो पुली होती है वो लाइट नहीं होती ना, हैवी होती है। तो पुली इज हैवी, तो क्वेश्चन समझ आ जाता है कि रोटेशनल का है क्वेश्चन, और हैवी पुली होगी, पुली का मास दिया होगा, है ना, या फिर तुम्हें पुली का यहाँ पे इनर्शिया, या पुली खुद भी रोटेट करी, उसका रोटेशनल इनर्शिया या उसकी काइनेटिक एनर्जी वगैरह पूछेगा, करेक्ट। तो रोटेशनल इनर्शिया ऑफ द पुली ही मुझे निकालना है, राइट। तो यहाँ पे दो मासेस दिए हैं, तो मैं एक को स्मॉल एम, इसको स्मॉल एम ले रही हूँ, इसको कैपिटल एम ले लेती हूँ। तो कैपिटल एम मास ये हो गया। So for the simplicity of the calculation, you can solve it in a small m and capital M, and in the last you can put the values, right? So easily you can calculate. तो यहाँ पे से ये डेटा गिवन था कि इफ इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, हेवियर मास इज ऑब्जर्व टू फॉल, तो यहाँ से क्वेश्चन को आप पिक कर सकते हो 81 सेंटीमीटर इन 9 सेकंड। जैसे मैंने कहा था, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से पहले एक्सीलरेशन निकाल के रख लो, राइट। तो S इज इक्वल टू UT, S क्या आ जाएगा 0.81, तो UT कितना आ गया, UT 0 है क्योंकि स्टार्ट से रेस्ट से किया है, तो हाफ AT स्क्वायर, तो 9 सेकेंड है, T स्क्वायर विल बिकम 81, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो 81/100, ये 81 गया, तो यहाँ से A की वैल्यू आ रही है 2/100, तो 2/100 को 0.02 भी ले सकते हो, नहीं तो यही रहने दो, दिस इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन साइड में रख लिया। अब इसके बाद में क्या करना है, क्योंकि पुली हैवी है, तो इसमें अगर मैं देखो तो कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, कैपिटल mg, तो दोनों पे टेंशन डिफरेंट होता है। अगर पुली हैवी है तो दोनों पे सेम टेंशन नहीं लेते। जैसे लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो क्या करते हो, दोनों पे सेम थ्रेड सेम टेंशन लेके सॉल्व कर देते हो सिंपली। लेकिन यहाँ पे वहाँ पे 2 इक्वेशन से सॉल्व हो जाता है, यहाँ 3 इक्वेशन बनानी पड़ेगी, करेक्ट, क्योंकि 2 इक्वेशन तो तुम्हारी इससे बनेगी और तीसरी पुली से बनेगी, राइट, बिकॉज पुली इटसेल्फ इज रोटेटिंग ना। तो यहाँ जो पहली इक्वेशन बनेगी वो तुम्हारे पास अगर इससे बनाओ, तो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन पूछा है, वो भी एक सेशन में। सोचो, अब अगली बार तो आनी है प्रोफेशन में इस पे क्वेश्चन, मान के चलो 100% क्वेश्चन आएगा इस टाइप का। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा, क्योंकि जो हैवी पुली होगी, हैवी मास होगा, वो नीचे जाएगा, और ये वाला अपवर्ड जाएगा, एक्सेलरेशन सेम एक्सेलरेशन से, राइट। तो फर्स्ट आई एम राइटिंग द इक्वेशन फॉर दिस ब्लॉक। So what will be the equation? Net force is equal to mass into acceleration, simple। तो वही भाई न्यूटन सर ने कहा है, तो mg minus t1 is equal to ma, this is your first equation। and second ब्लॉक के लिए लिखोगे तो क्या लिखोगे, ये अपवर्ड जा रहा है ब्लॉक, तो this is t2 minus mg, ये स्मॉल m है, तो this is small ma, second equation।
Just distinguish between small m and capital M, don't get confused. And ये पुली रोटेट करिए, इसका मतलब मैं मान लेती हूँ ये ओमेगा है, इसका ऐसे रोटेट करिए, तो इस पे जो नेट टॉर्क लगेगा, तो टॉर्क इज इक्वल टू होता है आई इंटू एल्फा, राइट। तो टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी होता है। तो अगर मैं टेंशन के टर्म में इसको लिखना चाहूँ तो T1 का फोर्स बड़ा है, तो T1 इंटू आर, ये हो जाएगा मेरा पहला टॉर्क। एंड नेट टॉर्क निकाल रहे हैं, तो एक क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज है, तो नेट टॉर्क हो जाएगा T1 आर माइनस T2 आर इज इक्वल टू टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू एल्फा होता है। क्या होता है? इट इज आई इंटू एल्फा। आई ही तुम्हें कैलकुलेट करना है, ध्यान देना, पुली का जो आई है वही मुझे कैलकुलेट करना है। जो कैलकुलेट करना है ना, उसको मेरे दिमाग में रखा करो कि व्हाट यू वांट टू कैलकुलेट, करेक्ट। तो आई इंटू एल्फा, तो एल्फा को यू कैन ऑलवेज राइट इन टर्म्स ऑफ ए इज इक्वल टू आर एल्फा होता है, तो एल्फा को यू कैन ऑलवेज राइट ए बाई आर। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे ए बाई आर लिख देती हूँ। तो अगर यहाँ पे पूरी इक्वेशन को अगर r से डिवाइड कर दो तो सिंप्लीफाई हो जाएगी, और फिर ऐड करेंगे तीनों इक्वेशन को तो कैंसिल आउट हो जाएंगे टर्म्स। तो अगर r से इसको पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर लो तो क्या बनेगा? T1 माइनस T2 इज इक्वल टू आई इंटू ए बाय आर स्क्वायर। दिस इज योर इक्वेशन 3, right? Now you can add all the three equation. So if you will add it, you can see T1, T1, T2, T2, करेक्ट। देन इन दोनों में ध्यान दो, g कॉमन आ जाएगा, g विल बी स्मॉल g इज कॉमन, तो इट विल बिकम कैपिटल M माइनस स्मॉल m। एंड इन तीनों में अगर तुम ध्यान दोगे तो a इज कॉमन, सो इट विल बिकम कैपिटल M प्लस स्मॉल m प्लस आई बाई आर स्क्वायर। सो ऑलमोस्ट द क्वेश्चन इज डन। एवरीथिंग a मैंने ऑलरेडी 2/100 कैलकुलेट कर रखा है, सब कुछ डेटा गिवन है, i मुझे निकालना है, राइट। सो बस डेटा पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो g इंटू m माइनस m, सो मास वॉज गिवन दैट वॉज 400 and 350. If you will subtract it, you will get 50. तो 50 ग्राम्स है, इसको केजी में कर लेना, तो इट विल बिकम 50 केजी करोगे तो 10 की पावर माइनस 3 इज इक्वल टू एक्सीलरेशन 2/100 कर चुके हो। एंड m प्लस m करोगे देन इट विल बिकम 750। 400 प्लस 350 विल बिकम 750 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3, बिकॉज केजी में करोगे इसको। आई कैलकुलेट करना है, आर रेडियस है, रेडियस इज 2 सेंटीमीटर, सो 2 सेंटीमीटर 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2, और अगर इसका स्क्वायर करोगे, आर स्क्वायर है तो 4 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4, राइट। सो आफ्टर दैट जी का वैल्यू कितना पुट करना है? इट इज आई थिंक 9.8 इज गिवन, सो इट इज 9.8। सो इसको मैं इधर मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, 2/100 इधर जाएगा, इट विल बिकम 100/2, 100/2, तो यहाँ पे 1 2 3 0, और ये 10 की पावर माइनस 3 गया, तो 10 की पावर माइनस 3 गया, तो यहाँ पे g की वैल्यू 9.8, 9.8 को अगर 2 से रिड्यूस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4.9, तो यहाँ पे आ जाएगा 4.9 इंटू 5 इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करोगे, दिस इज 0.75, दिस इज 0.75 प्लस आई अपॉन 4 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 24.5, और इसको 0.75 माइनस करो इसमें, और i अपॉन 4 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4, तो 24.5 माइनस 0.75, तो तुम लोग भाई चला लेना हाथ, और मैं कैलकुलेटर यूज कर ले रही हूँ, इंटू 4 कर लेते हैं। तो दिस इज 95 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4, तो आई की वैल्यू आ रही है 95 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4, दैट मीन्स बी पार्ट, बिकॉज 9.5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3, सेम थिंग, राइट। सो क्वेश्चन वॉज कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, एंड अगर तुम देखोगे इसमें लॉस ऑफ मोशन यूज हुआ है, और ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट मैं बोलूंगी, बिकॉज इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, suppose there is a uniform circular disk of mass capital M, radius small r, the shaded region is cut out from the disk, okay, तो ये दोनों ही शेडेड है, तो ये दोनों यहां से तुमने कट आउट कर दिया, तो जो रिमेनिंग डिस्क है, तो रिमाइंडर का एक्सेस ए के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आपको कैलकुलेट करना। जस्ट अंडरस्टैंड द सेम थिंग रिपीटेडली, दे आर आस्किंग अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर आप वही निकालना सीख जाओ ना तो क्वेश्चन बना लोगे, है ना। तो द शेडेड रीजन जो तुमने कट किया, तो यहाँ पहली चीज तो डिस्क है, पूरी फुल डिस्क है, उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट इज हाफ mr स्क्वायर। तो अगर मैं पूरी डिस्क का मास कैपिटल M ले लेती हूँ तो इट इज हाफ mr स्क्वायर, राइट। दिस इज योर इक्वेशन 1। एंड रिमूव करने के बाद जो
रिमेनिंग डिस्क है, तो पहले मैं रिमूव्ड पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगी और उसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की संग खास बात क्या है, मैंने फिर पहले भी बोला था, फिर बोल रही हूँ, इट इज स्केलर, राइट। तो यू कैन ऑलवेज पूरे सिस्टम का निकालो तो इसको डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, देयर इज नो वेक्टर सम इज रिक्वायर्ड, जस्ट डायरेक्टली ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर है, तो रिमूव्ड वाले का मैं निकाल लेती हूँ। तो रिमूव्ड हमारे पास दो डिस्क रिमूव कर रहे हैं, तो मैं सीधे सीधे दोनों सेम टाइप की डिस्क है तो डबल कर देंगे, एक का निकाल के डबल कर दूं। तो पहले एक का पहले मास तो पता होना चाहिए ना, तो अगर पहले मैं रिमूव्ड वाले का मास इधर निकाल लेती हूँ एम डैश। तो अगर पूरे डिस्क का मास कैपिटल एम है तो ये रिमूव्ड वाले का मास क्या होगा, राइट। तो पूरे डिस्क का मास इज रेडियस इज स्मॉल आर एंड इसकी रेडियस है आर बाई 4, राइट। सो मास को अगर मैं इसको लिखूं, मास पर यूनिट एरिया अगर मैंने सिग्मा ले लिया और इसको पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कुलर डिस्क है तो पाई आर स्क्वायर हो गया मास, सिग्मा इज मास पर यूनिट एरिया। तो यूनिट एरिया है, ऑब्वियसली जब हम 2D डिस्क होता है तो हम यूनिट एरिया लेते हैं, और अगर 3D ऑब्जेक्ट होता है तो मास पर यूनिट वॉल्यूम ले लेते हैं, रॉड होता है तो मास पर यूनिट लेंथ ले लेते हैं, करेक्ट। तो मास पर यूनिट एरिया इंटू पाई आर स्क्वायर हो गया। एम डैश अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू पाई, रेडियस आर बाई 4 है तो आर बाई 4 का स्क्वायर, तो इसे सिग्मा पाई आर स्क्वायर अपॉन 16। तो ये सब चीज ध्यान रखो, क्योंकि चार्ज के केस में यू विल हैव टू डू द सेम थिंग इन क्लास 12th ऑल्सो। तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 16 हो जाएगा, तो दिस विल बिकम m by 16, राइट। तो योर मास विल बिकम m by 16, करेक्ट। तो इसको देखो, यहाँ पे तो तुमने इसको निकाल तो लिया, लेकिन अभी इसको शिफ्ट भी करना पड़ेगा ना पैरेलल एक्सिस से, क्योंकि तुम्हें ए के अबाउट निकालना है, तो उसको तुम्हें इस ए एक्सिस के अबाउट शिफ्ट करना पड़ेगा, तो ऐड करना पड़ेगा एम आर स्क्वायर। और तो पहली चीज तो एम डैश लिख देती हूँ मैं, एम आर स्क्वायर, तो आर इज आर बाई 4, तो एम आर स्क्वायर डिस्क का होता है हाफ एम आर स्क्वायर, डिस्क का क्या होता है हाफ, 2 टाइम्स में इसलिए करी कि 2 डिस्क है, तो हाफ एम आर स्क्वायर मैंने एक डिस्क का उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखा है, राइट। और प्लस क्योंकि 3r/4 शिफ्ट किया है तो मैं इसको एम डैश 3r/4 का स्क्वायर, राइट। तो ये मेरे पास होगा, आर को स्मॉल आर लिख लेना, जो भी दिया है, व्हाटएवर डजंट मैटर। तो यहाँ से अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूँ, स्पेस बना लेती हूँ, तो यहाँ से अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर ले तो 2 से एक काम करो, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हो, एम डैश कॉमन आ रहा है, एम डैश को बाहर ले लो, या फिर एम डैश ही बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा हाफ ऑफ आर स्क्वायर अपॉन 16 प्लस 9r स्क्वायर अपॉन 16, तो आर स्क्वायर भी कॉमन आएगा और यहाँ से 16 भी आ रहा, 16 एलसीएम ले लो। तो यहाँ पे हमने एम डैश निकाल लिया था, एम डैश वॉज m by 16, तो एम डैश को लिख देती हूँ m by 16, एंड यहाँ से आर स्क्वायर अपॉन 32 है, और ये क्या है 9r स्क्वायर अपॉन 16, तो 32 एलसीएम आ जाएगा, 2 8 जो, एंड दिस फाइनली जो रिमूव्ड वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच रहा है, तो रिमूव्ड वाले का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच रहा है उसको आई डैश लिख देते हैं, तो इट इज m by 8 इंटू 32 एलसीएम आएगा, तो 32 एलसीएम आएगा, इट विल बिकम 18 प्लस 1 19, सो इट इज 19 आर स्क्वायर अपॉन 32, तो 32 इंटू 8 इज 256, राइट। सो 256 हो गया, तो 19 एम आर स्क्वायर अपॉन 256, तो मुझे रिमूव पोर्शन का निकालना है, तो इस फर्स्ट इक्वेशन में से माइनस कर देंगे। तो मैंने किया क्या कि पहले पूरी डिस्क का निकाला, फिर रिमूव डिस्क का निकाला, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके फाइनल आंसर निकाल लेते हैं। तो फाइनल आंसर हो जाएगा नेट का हाफ एम आर स्क्वायर माइनस इसका आया था 19 एम आर स्क्वायर अपॉन 256, 19 एम आर स्क्वायर अपॉन 256, सो 256 एलसीएम आएगा, तो यहाँ बचेगा 128 एम आर स्क्वायर माइनस 19 एम आर स्क्वायर, सो 128 माइनस 19, 128 माइनस 19 विल बिकम 109, तो 109 एम आर स्क्वायर अपॉन 256। सो हमें कंपेयर करेंगे तो यहाँ से वैल्यू क्या आ रही है 109, सो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था ये तुम्हारा, तो 109 इज योर फाइनल आंसर, करेक्ट। I think the video is getting very long, so I will discuss the rest of the question in the next video. Okay, so I hope this video was helpful, and we'll see you in the next one. Okay.